Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 17वां अध्याय श्लोक क्रमांक 15 और 16। श्लोक क्रमांक 15। दृष्ट्वान्यांश्च महोत्पातान् अतत्तत्त्वविदः प्रजाः ब्रह्मपुत्रान् ऋते भीता मेनिरे विश्वसंप्लवम्। अंग्रेजी में पढ़ूं तो चलेगा प्रभु? यस प्रभु, या। दृष्ट्वा, having seen, अन्यान, others, च, and, maha, great, utpatan, evil omens, atat tattvavidah, not knowing the secret of the portents, prajah, people, brahmaputran, the sons of Brahma, the 4 Kumaras, rite, except, bhita, being fearful, menire, thought, Vishwasamplavam, the dissolution of the universe. Translation. Marking these and many other omens of evil times, everyone but the 4 sage sons of Brahma, who were aware of the fall of Jaya and Vijay and of their birth as Diti's sons, was seized with fear. They did not know the secrets of these portents and thought that the dissolution of the universe at hand. Purport. According to Bhagavad Gita 7th chapter, the laws of nature are so stringent that it is impossible for the living entity to surpass their enforcement. It is also explained that only those who are fully surrendered to Krishna in Krishna consciousness can be saved. We can learn from the description of the Srimad Bhagavatam that it is because of the birth of 2 great demons that there were so many natural disturbances. It is to be indirectly understood, as previously described, that when there are constant disturbances on the earth, that is an omen that some demoniac people have been born or that the demoniac population has increased. In former days, there were only 2 demons, those born of Diti. Yet there were so many disturbances. At the present day, especially in this age of Kali, these disturbances are always visible, which indicates that the demoniac population has certainly increased. To check the increase of demoniac population, the Vedic civilization enacted so many rules and regulations of social life, the most important of which is the Garbhadhana process for begetting good children. In Bhagavad Gita, Arjuna informed Krishna that if there is unwanted population, Varna Sankara, the entire world will appear to be hell. People are very anxious for peace in the world, but there are so many unwanted children born without the benefit of the Garbhadhana ceremony, just like the demons born from Diti. Diti was so lusty that she forced her husband to copulate at a time which was inauspicious, and therefore the demons were born to create disturbances. In having sex life to beget children, one should observe the process for begetting nice children. If each and every householder in every family observes the Vedic system, then there are nice children, not demons, and automatically there is peace in the world. If we do not follow regulations in life for social tranquility, we cannot expect peace. Rather, we will have to undergo the stringent reactions of natural laws. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरी आवाज बराबर आ रही है प्रभु? जी प्रभु। ओके, तो आज हम तीसरे स्कंद से पढ़ रहे हैं और इस अध्याय का शीर्षक है हिरण्याक्ष की विजय। तो इसमें हमें बताया जा रहा है कि कैसे जब हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जो कि जुड़वा भाई थे, वो दीति के गर्भ में हैं, अभी गर्भ से बाहर नहीं आए हैं। गर्भ में रहते हुए किस प्रकार से वो असुर होने के कारण प्रकृति में बहुत सारे उत्पात मचे हुए हैं। इससे पहले के श्लोकों के ऊपर चर्चा तो हुई होगी कि किस प्रकार से बहुत तेजी से हवा बहने लगती है और श्रृगाल सियार आदि आवाज करने लगते हैं और जोरदार वर्षा होती है और बिजली कड़कने लगती है। और इस प्रकार से जो सारे अवगुण हैं, जो सारे बैड ओमेंस, जिसे प्रभुपाद जी ने बताया यहाँ पे, बैड ओमेंस सब सारे प्रकृति में दिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये असुरों का जन्म होने ही वाला था। तो इससे पहले कि मैं इस श्लोक के ऊपर चर्चा करूं तो थोड़ा सा एक रिकैप में बताना चाहूंगा इस कथा का। तो ये कथा जो है मैत्रेय ऋषि और विदुर जी के बारे मध्य में चर्चा हो रही है। विदुर जी अनेक प्रश्न पूछते हैं मैत्रेय मुनि से और मैत्रेय मुनि बहुत अच्छे से उनका जवाब देते हैं। और इस प्रकार से विदुर जी ने प्रश्न पूछा था सृष्टि के निर्माण के बारे में। तो उस समय मैत्रेय ऋषि बताते हैं कि एक पुत्र हुए जिनका नाम था मनु महाराज। तो मनु महाराज का विवाह हुआ शत्रुपा जी से और उनको आज्ञा दी गई ब्रह्मा जी ने कि आप मानव जाति की उत्पत्ति करिए। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा को शिरोधार करके मनु महाराज और शत्रुपा मानव जाति का निर्माण करने के लिए सज्ज तो हो जाते हैं। लेकिन फिर मनु महाराज बताते हैं कि हे भगवान, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा जी, हम उत्पत्ति तो करेंगे लेकिन अभी फिलहाल उन्हें रहने के लिए जगह नहीं होगी, क्योंकि पृथ्वी जो है गर्भोदक सागर में धसी हुई है। तो ब्रह्मा जी भी विचार करते हैं कि मैं सृष्टि करने में इतना व्यस्त हो गया कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि पृथ्वी जो है गर्भोदक सागर में चली गई है, तो उसको कैसे निकाला जाए। इसके ऊपर विचार करते ही ब्रह्मा जी के नासिका से एक चने के दाने के बराबर एक सुअर का बच्चा निकलता है। ब्रह्मा जी को छींक आती है और छींक के साथ उनकी नासिका से चने के दाने के बराबर एक सुअर का बच्चा निकलता है। और ब्रह्मा जी के देखते देखते वो छोटा सा बच्चा विशाल पर्वत का आकार धारण करता है, गरजने लगता है और गर्भोदक सागर में प्रवेश करता है।
तो ये सुअर का बच्चा और कोई नहीं, भगवान का ही एक रूप वराहदेव थे। तो वराहदेव इस प्रकार से पृथ्वी को बचा के उसको पुनर्स्थापित कर देते हैं। तत्पश्चात मनु महाराज और शत्रुपा जी मानव जाति की उत्पत्ति करते हैं। इसके पश्चात ऐसी घटना होती है कि जो दीति और कश्यप जी, उनके बारे में कथा आती है, क्योंकि उस समय पे विदुर जी मैत्रेय ऋषि से पूछते हैं कि हे मैत्रेय ऋषि, आपने ये तो वर्णन किया कि वराहदेव ने पृथ्वी को किस प्रकार से बचाया, लेकिन मैं वराहदेव की उस लीला का भी श्रवण करना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने हिरण्याक्ष को वध किया था। तो उस लीला के बारे में भी मुझे कृपया करके बताइए। तो इस प्रकार से विदुर जी जब मैत्रेय मुनि से पूछते हैं तो मैत्रेय मुनि उसका उत्तर देते हुए वर्णन करना चालू करते हैं कि किस प्रकार से हिरण्याक्ष का जन्म होता है। तो उस कथा में वो दीति और कश्यप जी की कहानी बताते हैं, जिसमें एक दिन दीति काम वासना से दग्ध होकर के अपने पति कश्यप जी को विनंती करते हैं कि मेरे काम वासना को संतुष्ट करिए, लेकिन वह समय अनुकूल नहीं था। जैसे प्रभुपाद जी ने इस परपोर्ट में भी बताया है, शाम के समय दीति अपने पति कश्यप जी के पास जाती है और उनको काम वासना को संतुष्ट करने के लिए आग्रह करती है। कश्यप जी बताते हैं कि समय अनुकूल नहीं है, इस समय पे महादेव अपने भूत पिशाच आदि सहगुणों के साथ विचरण करते हैं, तो इस समय भोग विलास नहीं करना चाहिए। लेकिन दीति सुनती नहीं, वो आग्रह करती है और कश्यप जी उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। तो उनकी इच्छा पूर्ण होने के बाद दीति को बहुत ही पश्चाताप होने लगता है कि मैंने असमय में मेरे पति को अप्रोच किया और संभोग में उनको संलग्न किया। तो पश्चाताप करते हुए अपने पति से क्षमा मांगती है। तो लेकिन कश्यप जी कहते हैं कि क्योंकि तुमने अपने काम वासना को कंट्रोल नहीं किया, तो अब तुम्हारे गर्भ में से 2 असुर पैदा होंगे जो तीनों लोगों को बहुत ही त्रस्त कर देंगे और उनका वध केवल भगवान द्वारा ही होगा। तो दीति ये सुनकर थोड़ी सी प्रसन्न होती है कि मेरे पुत्रों का वध भगवान के द्वारा होगा, क्योंकि भगवान जब किसी को मारते भी हैं तो क्योंकि वो एब्सोल्यूट हैं, वो परम सत्य हैं, तो उस व्यक्ति का भी कल्याण हो ही जाता है। तो दीति का भगवान के ऊपर ये दृढ़ श्रद्धा देख करके फिर कश्यप मुनि उनको बताते हैं कि हे देवी, तुम्हारी इस दृढ़ श्रद्धा के कारण तुम्हारे एक पुत्र का और एक पुत्र होगा जो बहुत बड़ा भक्त होगा। तो ये पहले ही कश्यप जी ने बता दिया था, और वो पुत्र और कोई नहीं लेकिन प्रहलाद महाराज हैं, जो हिरण्यकशिपु के पुत्र बनते हैं बाद में। तो इस प्रकार से दीति के गर्भ में कश्यप जी का वीर्य पनपने लगता है और धीरे धीरे 100 सालों तक वो गर्भ में रहते हैं, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। तो उस समय ये सारे गलत जो चिन्ह दिखते हैं, बैड ओमेंस जिसे प्रभुपाद जी ने कहा है, वो बैड ओमेंस दिखने लगते हैं प्रकृति में। और फिर जब ये बैड ओमेंस दिखने लगते हैं तब उस दीति के उस गर्भ के प्रभाव के कारण वो राक्षसी की शक्ति इतनी होती है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की कि उस गर्भ में रहते हुए भी उनके प्रभाव से जो है चंद्र और सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगता है और तीनों लोकों में अंधकार छाने लगता है। तो और किसी को पता नहीं चलता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो तीनों लोकों में त्राही त्राही मच जाती है और सारे देवतागण मिलकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और उनसे विनती करते हैं कि आप बताइए, कृपया करके बताइए कि ये अंधकार क्यों छाया हुआ है, क्या कारण है कि हमारा सूर्य और चंद्र का प्रकाश कम हो रहा है और चारों ओर अंधेरा छा रहा है। तब ब्रह्मा जी उनको जय और विजय की कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार एक बार चतुष्कुमार भगवान के दर्शन की इच्छा से वैकुंठ में जाते हैं। वैकुंठ के 6 द्वारों को पार करते हुए 7वें द्वार पर जब वे पहुंचते हैं तब उन्हें जय और विजय रोक लेते हैं और इस दुष्टता को देख करके चतुष्कुमार को बड़ा ही गुस्सा आ जाता है। अपने क्रोध से वो उन्हें शापित कर देते हैं कि तुम्हारी जगह वैकुंठ में नहीं लेकिन धरती पे है, तो वैकुंठ छोड़ के तुम्हें धरती पे जाना होगा।
और धरती पे जब जाओगे तब तुम असुर योनि में जन्म पाओगे। तो जय विजय बहुत ही नम्र भावना से उस शाप को स्वीकार करते हैं, लेकिन वो उनसे विनती करते हैं कि जब हम धरती पे जाएंगे असुर योनि में, तो कृपया करके हमें ये वरदान दीजिए कि हम भगवान को कभी विस्मरण ना होने पाए। और उसी समय भगवान वहां पे पधारते हैं। भगवान भी उस शाप का अनुमोदन करते हैं कि आपने जो किया सही किया, इनको अभी असुर योनि में जन्म मिलेगा, लेकिन असुर योनि में जन्म लेते हुए भी वो मेरा विस्मरण कभी नहीं कर पाएंगे, हमेशा मेरे बारे में ही सोचेंगे, मेरा ही चिंतन करेंगे। हालांकि क्रोध की भावना से और शत्रुत्व की भावना से करेंगे, लेकिन मेरा ही चिंतन करेंगे। तो भगवान के बारे में स्मरण करना अत्यंत लाभदायक है। हम देखते हैं कि शिशुपाल 24 घंटे भगवान के बारे में स्मरण करता था। हालांकि उसका स्मरण जो था वो अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल था, लेकिन फिर भी भगवान के बारे में स्मरण करने की शक्ति इतनी है कि कोई चाहे शत्रुत्व की भावना से स्मरण करे या फिर मित्रत्व की भावना से स्मरण करे, दोनों को लाभ होता ही है। इसलिए जो भी असुर मारे गए भगवान द्वारा, भगवान के सामने देखते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए जो भी असुर मरे, उनको भी भगवान ने मुक्ति प्रदान कर दी। तो इस प्रकार से शापित होने के कारण वही जय विजय अब दिति के गर्भ में आ जाते हैं। और दिति के गर्भ में रहते हुए 100 साल वो गर्भ में रहते हैं, और 100 सालों तक ये सारे विपरीत गुण दिखने लगते हैं प्रकृति में। कई जगह भूकंप आने लगता है, कई जगह बहुत बारिश आती है, कई जगह बारिश होती भी नहीं है, और इस प्रकार से तीनों जगत त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगता है। तो उसके पश्चात उन सभी बैड ओमेंस का वर्णन होने के बाद अब ये 15वां श्लोक हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसका तात्पर्य, इसका ट्रांसलेशन एक बार और पढ़ूंगा मैं। So, marking these and many other omens of evil times, everyone but the 4 sage sons of Brahma, who were aware of the fall of Jaya and Vijaya and of their birth as Diti's sons, was seized with fear. They did not know the secrets of these portents and thought that the dissolution of the universe was at hand. तो किसी को पता नहीं चल रहा था प्रकृति ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है, प्रकृति में ऐसे विपरीत प्रभाव क्यों दिख रहे हैं। केवल किन्हें पता था? 4 कुमारों को, क्योंकि वो जानते थे कि हमने जिन्हें शाप दिया है वही दिति के गर्भ में पनपने लग रहे हैं, और उनके ही प्रभाव से ये सब गुण दिख रहे हैं। उसके बाद हम तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, According to Bhagavad Gita 7th chapter, the laws of nature are so stringent that it is impossible for the living entity to surpass their enforcement. It is also explained that only those who are fully surrendered to Krishna in Krishna consciousness can be saved. प्रभुपाद जी भगवद गीता के 7वें अध्याय से बता रहे हैं कि किस प्रकार से प्रकृति को पार कर पाना बहुत ही मुश्किल है। प्रभुपाद जी उस श्लोक का उच्चारण करना चाह रहे हैं जिसमें भगवान बता रहे हैं कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये 3 गुणों वाली मेरी जो प्रकृति है, माया है, वो बहुत दुरत्याय है, बहुत दुस्त्यज है, जिसको छोड़ पाना या फिर जिसको पार कर पाना बहुत कठिन है। लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, यहाँ पे दूसरी लाइन में प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं कि जो भगवान की शरण लेते हैं उन्हें इस माया को पार कर पाना बहुत ही आसान है। तो ब्रह्मा जी अपने एक श्लोक में भागवतम में बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति इस भवसागर को आसानी से पार कर पाता है। तो वो एक श्लोक में बताते हैं कि समाश्रित ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धिम यत महत्तम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धिम यत पदम तद विपदम। इस प्रकार से वो श्लोक में बताते हैं कि जो भवसागर है उसे पार कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि भवसागर में जो फंसा हुआ व्यक्ति है वो प्रकृति के 3 गुणों के अंदर आता है, और इन 3 गुणों के ऊपर उठना बहुत कठिन हो जाता है।
लेकिन एक व्यक्ति जिसने भगवान की शरण ली हुई है, उस व्यक्ति के लिए ये जो भव सागर है, वो भव सागर इतना कम हो जाता है कि एक बछड़े के खुर में जितना पानी होता है, जब बछड़ा चलता है तो उसके खुर के निशान जमीन पे उठते हैं और कई बार उस निशान में थोड़ा सा पानी जम जाता है। तो वो छोटे से निशान में पानी जम जाने वाला जितना आकार है, भव सागर का आकार भी उसी प्रकार उस व्यक्ति के लिए होता है जो भगवान का शरण ले चुका है। और ऐसे छोटे से आकार जिसमें पानी भरा हुआ है, उस खुर को कोई बच्चा भी बहुत आसानी से पार कर पाता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी भी उसी बात का अनुमोदन करते हैं कि जिसने भगवान की शरण ली है, उसे यह भवसागर पार कर पाना बहुत ही सरल है। तो इसलिए भगवान की शरण ग्रहण करना सबके लिए अत्यंत अनिवार्य है। और शरण ग्रहण करने का सर्वोत्तम मार्ग जो है वो हरिनाम संकीर्तन है और भगवान के लीला कथा को सुनना है। श्रवण की विधि से हम भगवान के प्रति भक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। और बहुत ही सुंदर प्रकार से हर दिन प्रभु जी गोपी मनोहर प्रभु भागवत का ये जो ऑनलाइन क्लास उसे उन्होंने जारी रखा है काफी सालों से। तो भागवत भी कहता है कि नित्यम भागवत सेवया, कि अगर किसी को नैष्ठिक की भक्ति चाहिए तो नित्य रूप से भागवत की सेवा करनी चाहिए। तो और भागवत में भी पहले स्कंद में बताया है, यस्याम वैश्रूयमानायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा, कि किस प्रकार से केवल भागवत के श्रवण करने से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का उत्पादन होता है हृदय में। और जब भक्ति का उत्पादन हृदय में हो जाता है तब तीन चीजें हृदय से गायब हो जाती हैं, शोक, मोह और भय। ये तीनों चीजें गायब हो जाती हैं और इस प्रकार से हम भवसागर को पार कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान की शरण ग्रहण करना है तो श्रवण और कीर्तन सबसे उत्तम मार्ग है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, We can learn from the descriptions of Srimad Bhagavatam that it is because of the birth of two great demons that there were so many natural disturbances. It is to be indirectly understood that when there are constant disturbances on the earth, that is an omen that some demonic people have been born or that demonic population is increased. तो इस प्रकार से हम आज के युग में भी देखते हैं कि इस प्रकार से कई जगह पे ऐसे बैड ओमेंस दिखते हैं, नेचुरल डिस्टर्बेंसेस दिखते हैं। कई जगहों पे अब युद्ध भी होने लगा है दूसरे देशों में, और कई जगह पे भारी भूकंप होता है, कई जगह पे लैंडस्लाइड्स होती हैं। तो इन सब चीजों का अर्थ ये है कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग जो हैं आज कलयुग में बढ़ रहे हैं। तो इनडायरेक्टली यह हमें समझ लेना चाहिए। To check the increase of demonic population, the Vedic civilization enacted so many rules and regulations of social life, the most important of which is the Garbhadan process for begetting good children. तो अगर ये अनवांटेड पॉपुलेशन, असुरी प्रवृत्ति के लोगों का जन्म अगर रोकना है तो फिर सबसे पहला मार्ग है गर्भाधान संस्कार को अपनाना। रूपा जी गर्भाधान संस्कार के ऊपर बहुत स्ट्रेस दिया करते थे। जब बच्चों की उत्पत्ति करना है, जब माता पिता ये निश्चय कर लेते हैं कि अब हमें बच्चे चाहिए, बच्चों की उत्पत्ति करनी है, तो उसी दिन से गर्भाधान का संस्कार का जो है वो शुरू हो जाता है। और बहुत ही डिटेल में गर्भाधान संस्कार के बारे में बताया गया है कई पुस्तकों में कि किस प्रकार से बच्चे का जो जन्म है वो किस प्रकार से उनके माता पिता की मनोभावना पे निर्भर रहता है। जिस मनोभावना से माता पिता एक साथ आते हैं और बच्चा गर्भ में रहते हुए माता पिता किस प्रकार आचरण करते हैं और वो अपने जीवन में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इससे बहुत प्रभाव पड़ता है वो गर्भ में पनपने वाले बच्चे के ऊपर। हम जानते ही हैं कि जब प्रहलाद महाराज अपने गर्भ में थे, अपनी माता कयाधु के गर्भ में थे, तब नारद मुनि ने कयाधु को भक्ति का उपदेश दिया था। लेकिन गर्भ में रहते हुए भी प्रहलाद महाराज ने उस उपदेश को ग्रहण किया और जब वो गर्भ से बाहर आए तब वो एक अत्यंत उत्तम भक्त बन पाए भगवान के। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि गर्भ में जब अभिमन्यु थे
तो अर्जुन ने अपनी पत्नी सुभद्रा को युद्ध के कई नियम, कई नीतियां सिखाई थी। खास करके चक्रव्यूह को कैसे भेदन करना है उस बारे में बताया था। तो अभिमन्यु ने गर्भ में रहते हुए उसको सीख लिया था, गर्भ में ही। तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जब कोई माता गर्भवती होती है तब वो क्या करती है, क्या खाती है, क्या देखती है, क्या सुनती है, इन सब चीजों का असर जो है वो गर्भ में पनपने वाले बच्चे के ऊपर रहता है। और गर्भाधान संस्कार में हमने पाया है कि किस प्रकार से माता पिता संभोग के लिए आने से पहले कई सारे नियम बतलाए गए हैं। हमारे वैष्णव पद्धति में बताया गया है कि कम से कम उन्हें 50 माला का जप करना चाहिए और जो अपने सीनियर्स हैं उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। भगवान का विग्रह अगर उनके घर में है तो भगवान की बहुत सुंदरता से सेवा करनी चाहिए। और भी कई सारे नियम बताए गए हैं जिनको डिटेल में आज मैं नहीं जाना चाहूंगा। तो इस प्रकार से गर्भाधान संस्कार जो व्यक्ति करता है उसको फिर बहुत अच्छी संतति की प्राप्ति हो जाती है, बहुत अच्छे पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो जाती है भगवान की कृपा से। और लेकिन क्योंकि कलयुग का आरंभ हो चुका है, किसी की शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, तो गर्भाधान संस्कार कोई करना नहीं चाहता। हालांकि जबकि इसके विपरीत कलयुग में हम देख रहे हैं कि गर्भ में ही उस बच्चे की हत्या की जा रही है। ये बहुत ही दुखद स्थिति है कि लोग अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, ताकि मेरे जीवन में और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए, इसीलिए गर्भ में पनपने वाले बच्चों की भी हत्या कर रही है। तो ये बहुत दुखद स्थिति है और इसी के कारण, इन्हीं पापों के कारण आज कलयुग में जो नेचुरल डिस्टर्बेंसेस है वो बढ़ गए हैं। तो भक्तों को चाहिए कि अगर कोई संतति की उत्पत्ति चाहता है तो गर्भाधान संस्कार अवश्य करे। और अर्जुन का भी उदाहरण प्रभुपाद जी यहाँ पे दे रहे हैं कि किस प्रकार से अर्जुन ने 5 कारण बताए थे क्यों वो युद्ध नहीं करना चाहते। तो उनमें से तीसरा कारण था कि अर्जुन बताते हैं कि जब सारे पुरुष मर जाएंगे तो फिर उनकी स्त्रियां जो है वो विधवा हो जाएंगी, और ऐसी विधवा स्त्रियों का जो है अनवांटेड फायदा जो कामुक व्यक्ति है वो लेना चाहेंगे। तो ऐसे कामुक व्यक्ति जब इन विधवा महिलाओं का जब फायदा लेंगे, दुरुपयोग करेंगे, तो वो तो गर्भाधान संस्कार करेंगे नहीं। और बिना गर्भाधान संस्कार क्या हो जाएगा? अनवांटेड पॉपुलेशन, जिसे वर्ण संकर बुलाते हैं अर्जुन, उसकी उत्पत्ति हो जाएगी और फिर सोसाइटी में हाहाकार मच जाएगा। तो इसीलिए अर्जुन का तीसरा कारण ये था कि अगर मैं इन सबको मार देता हूं तो इनकी महिलाएं जो है विधवा हो जाएगी और कामुक व्यक्ति इनका अनड्यू एडवांटेज लेंगे और वर्ण संकर की उत्पत्ति होगी। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, Diti was so lusty that she forced her husband to copulate at a time which was inauspicious, and therefore the demons were born to create disturbance. In having sex life to beget children, one should observe the process for begetting nice children. If each and every householder in every family observes the Vedic system, then there are nice children, not demons, and automatically there is peace in the world. If we do not follow regulations in life for social tranquility, we cannot expect peace. Rather, we will have to undergo stringent reactions of natural laws. तो किसी भी माता पिता को अगर अच्छे बच्चे चाहिए तो गर्भाधान संस्कार का पालन करना चाहिए। दिति ने इस नियम का पालन नहीं किया था। शाम का समय जो है संभोग के लिए अत्यंत प्रतिकूल होता है, क्योंकि शाम के समय भागवत में बताया गया है कि भगवान महादेव नंदी के ऊपर सवार होकर अपने भूत पिशाच आदि पार्षदों के साथ विचरण करते हैं। तो इसलिए शाम के समय किसी व्यक्ति को सोना भी नहीं चाहिए, ऐसे बताया गया है। संभोग की बात तो बहुत दूर है, लेकिन कश्यप मुनि, क्योंकि दिति इतनी दग्ध हो गई थी काम वासना से, तो कश्यप मुनि एक आइडियल हस्बैंड होने के कारण उन्होंने उस कामाग्नि को शांत करवाया। लेकिन उसके फल स्वरूप क्या हुआ कि दिति के गर्भ में राक्षसों की उत्पत्ति हो गई। तो हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। तावादि दैत्यो सहसा व्यजमानात्म पौरुषौ ववृधा ते श्मसारेण
kayena dripati iva. These two demons who appeared in ancient times soon began to exhibit uncommon bodily features. They had steel-like frames, which began to grow just like two great mountains. Purport. There are two classes of men in the world. One is called the demon and the other is called the demigod. The demigods concern themselves with the spiritual upliftment of human society, whereas the demons are concerned with physical and material upliftment. The two demons born of Diti began to make their bodies as strong as iron frames, and they were so tall that they seemed to touch the outer space. They were decorated with valuable ornaments, and they thought that this was success in life. Originally, it was planned that Jaya and Vijay, the two doorkeepers of Vaikuntha, were to take birth in this material world, where by the curse of the sages, they were to play the part of always being angry with the Supreme Personality of Godhead. As demoniac persons, they became so angry that they were not concerned with the Supreme Personality of Godhead, but simply with physical comforts and physical upliftment. तो इस श्लोक में बताया गया है कि जब वे दोनों पैदा हुए 100 साल गर्भ में रहने के बाद, तो उनके जो शारीरिक फीचर्स थे वो अनकॉमन थे, असाधारण थे. जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, उसका शरीर बहुत नाजुक, बहुत कोमल होता है, थोड़ा सा भी दर्द वो सह नहीं पाता. लेकिन ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जब पैदा हुए, तो उनके शरीर जो थे वो बहुत ही जटिले थे. स्टील फ्रेम्स शब्द यूज कर रहे हैं, स्टील लाइक फ्रेम्स शब्द यूज कर रहे हैं प्रभुपाद जी उनके शरीर के बारे में बताने के लिए. तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दो प्रकार के लोग इस जगत में होते हैं. पहले आसुरी प्रवृत्ति वाले और दूसरे देवता प्रवृत्ति वाले. जो देवता प्रवृत्ति वाले होते हैं वो हमेशा अध्यात्म की ओर चलते हैं, उनको शरीर से कोई लेना देना नहीं होता. लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं उन्हें आध्यात्मिक की कोई चिंता नहीं होती, केवल वो शारीरिक सुख के लिए प्रयत्न करते रहते हैं. तो यही सिचुएशन आजकल हम देखते हैं इस जगत में कि किस प्रकार से शारीरिक स्तर पे लोग आजकल काम कर रहे हैं. लोग जिम जाते हैं बहुत सुंदर शरीर बनाने के लिए, और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री तो इतनी फल फूल रही है शरीर को सुंदर दिखाने के लिए, बुढ़ापा छुपाने के लिए. तो ये सब जो है ये गुण है ऐसे व्यक्ति के लिए, आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति के लिए, क्योंकि ये केवल शारीरिक स्तर पे हैं. तो नो डाउट शारीरिक स्तर पे हमें कार्य करना ही होता है, व्यवहारिक कार्यों के लिए शारीरिक स्तर पे होना ही पड़ता है. लेकिन शारीरिक स्तर ही हमारा स्तर नहीं है, इससे इस स्तर से ऊपर उठना ये देवता का गुण होता है. तो इसलिए शरीर को हमें भागवत कहता है कि कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता और जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चय कर्म धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय ही स्मृता. तो वेद बताता है कि धर्म करो जिससे कि अर्थ प्राप्त होगा. अर्थ प्राप्त होने के बाद काम वासना, कामोपभोग करो, और कामोपभोग करके जब फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तब मोक्ष की ओर बढ़ो. लेकिन भागवत डायरेक्ट बताता है, डायरेक्ट मार्ग बताता है. तो भागवत बताता है कि धर्म करो इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें अर्थ चाहिए, धर्म करो इसलिए क्योंकि तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति चाहिए. धर्मस्य ही अपवर्गस्य, इस संसार से मुक्त होके अपवर्ग में जाना, इसलिए धर्म करो. अर्थ पाने के लिए धर्म मत करो. और नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय ही स्मृता. और जब ऑलरेडी तुम्हारे पास अर्थ हो, कई लोग ऊंचे परिवार में और बहुत ही धनवान परिवार में जन्म लेते हैं, तो जन्म से ही उनके पास बहुत सारा अर्थ होता है. तो उस अर्थ का करें क्या? तो उस अर्थ को कामोपभोग के लिए नहीं यूज करना चाहिए. नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय ही स्मृता. और कामस्य न इंद्रिय प्रीति, जब किसी के पास कामोपभोग करने के लिए बहुत सारा साधन हो, बहुत बड़ा बंगला हो, बहुत बड़ी कार हो, और जो चाहे वो इंद्रिय तृप्ति उसके पास उपलब्ध हो,
तो उसे क्या करना चाहिए? कामस्य न इंद्रिय प्रीति, तो कामोपभोग करके इंद्रियों को तृप्त नहीं करना चाहिए। लाभो जीवेत यावता, उस काम की चीजों को, उन विषयों को केवल जी जाए शरीर, इसके लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिर प्रश्न होता है कि जी के करें क्या? तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जी करके तत्व जिज्ञासा करनी चाहिए कि किस प्रकार से हम इस भौतिक जगत से पार हो सकते हैं, किस प्रकार से 3 गुणों को पार करके हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो इस प्रकार से तत्व जिज्ञासा हमें करनी चाहिए। आर्थो यश्चैह कर्म भी, तो इस प्रकार से भागवत हमें बताता है। तो 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले और देवता प्रवृत्ति वाले। तो हमें चाहिए कि देवता प्रवृत्ति वाले गुण हम धारण करें, और वो गुण धारण करने के लिए हमें दूसरा और कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। भक्ति करने से ही सारे गुण हमारे अंदर अपने आप आ जाते हैं। नम्रता, सहिष्णुता आदि सारे जो दिव्य गुण हैं, भक्ति करने से ही हमारे हृदय में अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे भागवतम में बताया गया है कि किस प्रकार से देवता वाले सारे गुण तभी जब उस व्यक्ति में आते हैं जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, और भक्ति करने से जब वो गुण आ जाते हैं तो वो गुण जो है हमारे हृदय के, वो भगवान को आकर्षित कर। तो इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे उनके शारीरिक गुण जो थे असाधारण थे, और प्रभुपाद जी आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के लिए कह रहे हैं कि वो केवल शारीरिक स्तर पे कार्यरत रहते हैं और अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं। इसके विपरीत भक्तगण जो है वो अपने इंद्रियों का इस्तेमाल केवल इसके लिए करते हैं कि हम अपना बॉडी और सोल टुगेदर बना रहे हैं, और फिर वो हायर डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हैं भक्ति कर करके। तो इसलिए आज के श्लोकों में हमने देखा कि किस प्रकार से मैत्रेय जी वर्णन कर रहे हैं अलग अलग नेचुरल डिस्टर्बेंसेस का, और उसका कारण क्या था उसके बारे में भी बताया गया है 15वें श्लोक में। क्योंकि दीते के गर्भ में ये दोनों आसुर पनप रहे थे, और आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों का पॉपुलेशन अगर हमें खत्म करना है तो फिर हमें चाहिए कि गर्भाधान संस्कार का अनुसरण करें, और जिससे भक्ति करने में बहुत आसानी हो सकती है। सत्वगुण वाले व्यक्ति पैदा होते हैं, और सोसाइटी में जो है पीस, ट्रैंक्विलिटी बनी रहती है। और गर्भाधान संस्कार करके अच्छे पुत्रों की या पुत्रियों की उत्पत्ति होकर के फिर भक्ति करने में बहुत ही अनुकूल वातावरण सोसाइटी में बना रहता है। या फिर आजकल के जैसा वातावरण है, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग बढ़ रहे हैं और भक्ति करने में काफी दिक्कत होती है। हमने सुना ही है किस प्रकार से बांग्लादेश में और कई और जगह पे ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग जो हैं भक्तों को कितना त्रस्त कर रहे हैं, यहाँ तक कि कई भक्तों की जानें भी जा चुकी है। तो ये सब कलयुग के लक्षण तो है ही। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान का धन्यवाद करते हैं कि हमें भारत भूमि में जन्म मिला है, और ऐसे शुद्ध वातावरण में और अनुकूल वातावरण में हम भक्ति कर पा रहे हैं। इसके लिए हमें आभारी होना चाहिए भगवान का और प्रभुपाद जी का कि उन्होंने इस इस्कॉन को स्थापित किया। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सॉरी मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया और बीच में नेटवर्क भी कट गया था, तो उसके लिए कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। तो थैंक यू प्रभु फॉर ज्वाइनिंग, और बहुत अच्छा आपका क्लास सेशंस बहुत अच्छा रहता है, इट्स वेरी नाइस। तो थैंक यू फॉर दैट। मैं क्विकली, अगर आपके पास अगर टाइम है प्रभु, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं हम लोग प्रभु? हाँ प्रभु, जरूर। थैंक यू। चलो क्विकली मैं भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है, कोई कमेंट्स है, कोई डाउट्स है तो लेते हैं हम लोग को। स्टार्ट रेजिंग योर हैंड्स। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, आज का क्लास तो बहुत ही अच्छा था, और जनरली मैं ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ, इट्स माय फॉल्ट, बट थैंक गॉड कि मैंने ज्वाइन कर लिया। एंड
यस, गर्भधारण संस्कार के बारे में जब ये प्रिपरेशन हमारे लाइफ में था तो हमने इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया। आई वाज वेरी ईगर टू नो एक्चुअली व्हाट इट इज, और हमारा जो सनातन संस्कार है क्या। तो उस वक्त जब मैं इस स्टेज से गुजर रही थी, एंड देन जैसे कि अगर बहुत लोग ये चीजें नहीं, भगवत गीता या फिर ऐसा भक्तिभाव नहीं हो पाता या फिर ऐसा सिचुएशन नहीं होता, तो ऐसे टाइम में मुझे ये बुक मिला था, ये गर्भधारण संस्कार का इस्कॉन से ही मैंने लिया था। हाँ, और ये जो बुक है ये लाइक पूरा इसमें कंक्रीट करके दिया हुआ है, लाइक शॉर्ट करके दिया हुआ है, और इसको पढ़ने के बाद समझ में आया कि एक्चुअली कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है गर्भ संस्कार और गर्भ धारण संस्कार। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि समहाउ मेरे को ये मिल गया बाय द गॉड ग्रेस, और मैंने ये फॉलो भी किया। एंड अगर इसकी भी ये होनी चाहिए यंगस्टर में डिस्ट्रीब्यूशन इसकी भी, आई थिंक मेरे को भी एक है कि मैं इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन करूं, एंड आप लोगों से सुनकर ये चीज़ें को इम्प्लीमेंट करना, जैसे बोल उतना एक्सप्लेन करके जब तक वो इंस्पायर नहीं होते, तो मैं ये लेना चाहती हूँ कि मैं खुद ये फॉलो करी हूँ, एंड जो इंस्पिरेशन मुझे मिल रहा है शुड शेयर विद all the youngsters, especially with the girls. So I decided to distribute these books, like today I decided. और एक भक्त प्रहलाद का वो चीज मालूम चला, जो भक्त प्रहलाद का हम कहानी तो पढ़े थे, सारा कथा तो सुनते थे, बट वो कैसे हिरण्यकश्यप का वो कैसे बेटा बना, उसका आज वो क्लियरेंस हो गया। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। माता जी फिर से वो बुक दिखा सकते हैं, आपको स्पॉटलाइट किया है। हाँ, ये है प्रभु जी, भारत चंद्र दास महावीर दासा करके है ये बुक। एंड प्रभु जी ये ऐसा सिर्फ ये नहीं है कि बस ये बुक गर्भ संस्कार प्रिपरेशन के लिए भी दिया हुआ है, एंड देन ड्यूरिंग मतलब प्री पोस्ट ड्यूरिंग एंड सारा दिया हुआ। फिर इसके बाद अगर बच्चा फिर आ गया, उसके बाद उनको कैसा, जैसे मैंने आप प्रभु जी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था ना कि हम पुरुषोत्तम को क्या ऐसा दें, कि वो पिक्चोरियल बुक के बारे में डिस्कस किया था मैंने। तो इसमें कुछ हेल्प दिए हुए हैं, इधर लास्ट में हेल्प दिए हुए हैं, टाइमलेस स्टोरीज ऑफ गौ माता, ये सब बुक्स हम बच्चों को पढ़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं स्टोरीज। तो ये काफी अच्छा है। और जो गर्भ धारण के समय में जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हमें कथा सुननी चाहिए, जो सुनने स्पेशलाइज्ड है, वो कथा इसमें है। आई हैव गॉन थ्रू। तो ये स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी क्लास हो यंगस्टर जुड़े, और आप लोग भी जब प्रीचिंग के लिए जाते तो इस भगवत गीता करते बहुत लोग वो डर जाते, वो मोटा वो चीज देख के डर जाते, बट इसका भी मेंशन करें तो शायद जैसे मेरे लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ गया, मे बी उनके लाइफ में भी बहुत चेंज आ जाएगा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा एक पॉइंट छेड़ा आपने माता जी की, एक्चुअली बहुत जरूरत है समाज में आज का। एंड जैसे आप बोल रही थी, नॉट ओनली गर्ल्स, जैसे आप बोल रही थी गर्ल्स को, नॉट इवन गर्ल्स, इवन लड़कों को जो है ये बहुत अच्छा से पता होना चाहिए। एंड इफ दे नो देन दे कैन कैरी आउट दिस संस्कार जो है उसको कर सकते हैं, और अच्छे अच्छे जीव जो हैं वो जो है धरातल पे बुला सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, फिर सारा वर्ण संकर ही प्रजाति होगा। सो थैंक यू माता जी फॉर शेयरिंग दिस, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। और कोई भक्त है, एनीबडी एल्स? किसी का हैंड रेज नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद रसिक गौरंग प्रभु जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, एंड सॉरी फॉर लूजिंग द टच। और हम लोग अभी ऐसे ही टच में रहेंगे, एंड विल डू मोर एंड मोर सेशन, हम लोग ऐसा करते रहेंगे। और आज ऐसा लग रहा है एकदम चिड़िया की आवाज, ऐसे नैमिषारण्य में बैठे ऐसा लग रहा है। सो वेरी नाइस एटमॉस्फेयर प्रभु, थैंक यू फॉर दैट। हरे कृष्णा।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ईश्वर गोविंद की जय, श्री भक्तवृंद की जय, इस ग्रेस से गौरंग प्रभु की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। ऑनलाइन साधु संघ की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया कि भागवत के ऊपर कुछ बोल पाऊं। हरे कृष्णा। प्रभु अभी ये ऐप को सेव करते रखिए और अपडेट करते रखिए। वी विल बी इन टच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।